May I proceed, guys? I'm starting, okay? Good evening, everyone. I hope you all are doing well. On behalf of Team Vidhigyata, I warmly welcome all the participants to the fifth session of Vidhigyata Civil Drafting Course, July 2026 batch. It is wonderful to see all of you joining us again as we continue our journey towards practical legal learning and drafting skills. Before we begin, I request everyone to kindly keep their microphones muted throughout the session. Participants may note down their questions, which will be addressed during the question answer session at the end. In our previous session, we covered important aspects of civil drafting, including legal notice, affidavit, and many suit draftings. Today, we move to another important topic, divorce petition and drafting exercise. A divorce petition is one of the most frequently drafted pleading in family law practice. Understanding its structure, essential components, legal requirements, and drafting technique is crucial for every law student and aspiring legal professional. To guide us on this important subject, we have with us an experienced legal practitioner. It is my pleasure to introduce our mentor for today's session, Advocate Rahul Ahiwar sir. Advocate Rahul sir is associated with the District and Session Court Sagar and the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. Through his litigation practice, he has gained valuable experience in handling various civil and family law matters. His practical exposure and courtroom experience makes him an ideal mentor to help us understand the nuances of civil petition drafting. Sir, on behalf of Team Vidhigyata and all the participants present here, I extend a very warm welcome and heartfelt gratitude to you for sparing your valuable time and sharing your experience with us. Without taking much more time, I respectfully invite Advocate Sir to deliver today's session on divorce petition and drafting exercise. Sir, the virtual stage is all yours. Good evening, everyone, and thank you, Team Didigyasa, for such initiation for the law students and aspiring law uh, budding lawyers for betterment of your future and all the aspects for better crafting, better arguments, and they all when they comes to the future aspect, they have well. तो जब हम अच्छा करने के लिए वैसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा प्रॉपर तैयारी करनी तैयारी के इस इनिशिएशन में हम आपके लिए जो मुझे कार्ड सौंपा गया था डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आज उस पर बात करेंगे कुछ ड्राफ्टिंग के अलावा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको बहुत जानना जरूरी होता है उन पर अपन बिल्कुल विशेष रूप से बात करेंगे ठीक है और लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे जिसमें कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं ठीक है तो डाइवोर्स पिटीशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आप अपने लॉ स्कूल में जब आप पढ़ाई करते होंगे तो पर्सनल लॉ आपने पढ़े होंगे तो पर्सनल लॉ जनरली एक लॉ से खत्म नहीं होता है सारे लॉज होते हैं जिसमें अगर हम बात करें तो पर्सनल लॉ में जनरली हिंदू मैरिज या बोल दिया जाए मुस्लिम लॉ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें गवर्न होता है अब जब हम एज अ लेजिस्लेशन पर्पज से आते हैं तो हमें एक्ट के थ्रू जाना है क्योंकि हम जब कोई भी पिटीशन फाइल करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी है हमें मेंटेनेंस रिगार्डिंग तो वो किसी लॉ के थ्रू आना चाहिए ठीक है तो लॉ का हमें प्रोविजन पता होना चाहिए तो मैं यहाँ लॉ के रिगार्डिंग कौन कौन से लॉ गवर्न होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किसको गवर्न करता है हिंदू बुद्धिस्ट जैन एंड सिख स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अब स्पेशल मैरिज एक्ट कौन सी चीज है यहाँ पे दो डिफरेंट रिलीजन पर बेस्ड व्यक्ति क्या करते हैं जब शादी करते हैं तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न या वो अपनी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब वो अपने जो भी धर्म है उसको छोड़ना नहीं चाहते तब वो किस एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं Excuse स्पेशल me, मैरिज sir. Excuse me, ओके sir. Sorry for interrupting, but your voice is not coming properly. I think there's some network issue.
हेलो ऑडिबल हेलो Yes, sir. एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली A little bit. Sir, little bit vibration in your voice. So if possible, you can remove your Bluetooth. नाउ प्रॉपर्ली Yes, sir. ओके। तो हम बात कर रहे थे कि मैट्रिमोनियल लॉज जो है वो इंडिया में किन किन लॉ के थ्रू अपन गवर्न करते हैं। तो मेनली हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इनके बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनको अगर हम मैरिज के बारे में बात करें या डाइवोर्स के रिगार्डिंग, तो इनके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं बनाया गया। तो इनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उससे गवर्न होगा, ठीक है। जिसमें बोला जाए तो जैसे खुला मैरिज इसका एक टाइप है, खुला है। मुबारक जो है एक डाइवोर्स का टाइप है। फिर आ जाते हैं अपन इंडियन डाइवोर्स एक्ट, ये इस पर एप्लीकेबल होता है क्रिश्चियंस पर। फिफ्थ है, लास्ट है जो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ठीक है। ये पांच है जो लॉ जो इंडिया में गवर्न करते हैं मैट्रिमोनियल लॉज के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा कंपैरेटिव ओवरव्यू देखते हैं कि भाई इनमें कुछ अलग है या चीज है, या कौन से हमें लीगल प्रोविजन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट पर बात करें तो इसके लिए एप्लीकेबल जो होता है वो हमने देख लिया किन किन रिलीजन बेस्ड पर्सन पर एप्लीकेबल होता है। क्या म्यूचुअल कंसेंट इनके में एप्लीकेबल होती है? तो बिल्कुल होती है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट पर अगर हम आते हैं तो इसको सिविल मैरिजेस का दर्जा दिया गया है। और अगर इस पे म्यूचुअल कंसेंट की बात करें तो एप्लीकेबल होता है, तो इस पे भी एप्लीकेबल होता है। मुस्लिम लॉ पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये इनके जो पर्सनल लॉ है जहां जहां उसको परमिसेबल किया गया उसके अकॉर्डिंग होगा। ये डाइवोर्स एक्ट है जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो क्रिश्चियन पे एप्लीकेबल, इसमें म्यूचुअल कंसेंट है तो इसमें भी एप्लीकेबल होता है, पारसी एक्ट में भी एप्लीकेबल होता है। इसके पहले हम कुछ मेनली प्रोविजन पर बात करेंगे। वैसे आप लोग ने जब अपने कॉलेजेस के टाइम में होंगे, जब आपके ये सब्जेक्ट होगा तो आपने विशेष रूप से इसको देखा होगा। तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट पर बात करें तो अगर डाइवोर्स के रिगार्डिंग अगर हमें पिटीशन फाइल करनी है तो कौन सा लीगल प्रोविजन हमको ध्यान रखना है? सेक्शन 13, 13A, 13B। उसके अलावा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पर जाते हैं, लेकिन मेनली अगर हम देखा जाए तो डाइवोर्स के रिगार्डिंग हमें प्रोविजन ध्यान रखना है सेक्शन 13A एंड 13B। स्पेशल मैरिज एक्ट पर अगर हम बात करें तो कौन से सेक्शन आपको ध्यान रखना है? सेक्शन 27, 27A एंड सेक्शन 28। मुस्लिम लॉ में अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं है प्रोविजन, लेकिन अगर इसका एक्ट की बात करें 1939 का जो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, तो इसका सेक्शन 2 जिसके अकॉर्डिंग अपन पिटीशन फाइल करेंगे। इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेक्शन 10 एंड 10A। पारसी मैरिज एक्ट में जो अपन को देखना है सेक्शन 32, सेक्शन 32B। तो ये हमारे मेन प्रोविजन हो गए। अब अगर हम बात करें तो भाई जो पिटीशन फाइल करनी होती है उसके पहले हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सबसे पहले क्या जरूरी है? तो सबसे पहले चाहिए आपका क्लाइंट। बिकॉज अगर हम कितना भी पढ़ लें, कुछ भी चीज कर लें, जब तक हमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हम कितना भी इंटरेस्ट जगा ले, जब तक हमारे पास क्लाइंट नहीं होगा हम पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नेसेसरी है कि क्लाइंट होना जरूरी है। क्लाइंट, अब क्लाइंट तो आ गया आपके पास, तो क्लाइंट का क्या लेना पड़ेगा? हमें इंटरव्यू लेना होगा, क्योंकि फैक्ट कलेक्ट कहाँ से करेंगे और एविडेंस कलेक्ट कहाँ करेंगे? थ्रू द क्लाइंट। तो क्लाइंट इंटरव्यू हमें लेना है, क्लाइंट की सारी बातें जाननी है उस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। खाली डिस्प्यूट्स नहीं, डिस्प्यूट के पहले कि भाई जो इनिशिएशन जब मैरिज होती है वहां से लेके जब तक क्लाइंट आपके पास आया है वो सारे इंसिडेंट, वो सारी टेक्नोलॉजी को आपको समझना है, उसको नोट डाउन करना है। अब जब आप प्रॉब्लम समझेंगे, उसका जानेंगे कि भाई वो किस रिलीजन को बिलोंग करता है, किस एक्ट के थ्रू उसकी शादी हुई है, तो वो सारी चीज देन अपन एप्लीकेबल करेंगे लॉ। अब लॉ एप्लीकेबल करेंगे तो भाई जब हमने उसकी काउंसलिंग की होगी तो उन कपल्स के बीच में, स्पाउसेस के बीच में कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्राउंड सर्च करेंगे, जिसके बारे में हमने सेक्शन पर बात कर चुके हैं
तो वो उन सेक्शन को जब हम देखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, तो इनके जो सेक्शन दिए गए हैं, तो उन सेक्शन में हम उन ग्राउंड्स को फॉलो करेंगे कि भाई किस ग्राउंड्स में ये फिल हो रही है क्लाइंट्स की प्रॉब्लम। देन हम कलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी व्यक्ति का अगर ग्राउंड्स लगा रहे हैं किसी मेडिकली कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग, अगर उस ग्राउंड पर हम डाइवोर्स पिटीशन फाइल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसके एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उसकी वायलेंस के रिगार्डिंग, या उसने इंजुरी कॉज करी है, या फिर मान लीजिए वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व है, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा एविडेंस हमारे फैक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम पिटीशन फॉलो करेंगे। ठीक है, पिटीशन को अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम इंपॉर्टेंट है। फिर पिटीशन करके हम उसको वेरीफाई, पिटीशन के लिए रूल्स जो आपने ऑर्डर 6 जो सीपीसी फॉलो किया होगा उसमें सारे रूल्स बताए गए हैं कि प्लीड फैक्ट नॉट लॉ, है ना। कंसाइज फॉर्म में आपको अपनी प्लीडिंग रखनी है, फैक्ट रखनी है। ठीक है, कोई भी अगर ओके, तो व्हेन यू रीड अबाउट द CPC and order 6, they stated about the rules of pleading. Okay, so when you study about the rule 6, the concise form in a law, applicable fact not law, if any incident follow the date wise, तो date wise हमें उसको क्या करना है अपनी pleading में लिखना होता है। if any notice has been served by any parties, then हमें क्या करना होता है अपनी pleadings में भी उनको follow करना होता है। then we go for the verification, सारी जो प्लीडिंग्स, जो सारे पैरास जो हम करते हैं उसके लास्ट में जो पार्टीज होती है पिटिशनर की साइड से जो भी होती है, या हम रिस्पोंडेंट को अगर रिस्पोंडेंट की साइड है तो उसको क्या करना होता है वेरीफाई करके उसके पार्टीज के साइन करवाए जाते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने शायद आपकी एक सेशन हुआ होगा एफिडेविट के रिगार्डिंग, तो उस प्लीडिंग के सपोर्ट में हमें एफिडेविट भी फाइल करना होता है। देन वी गो फॉर द इंटरम एप्लीकेशन, इंटरम एप्लीकेशन फॉर द इंटरम मेंटेनेंस, कस्टडी, लीगल एक्सपेंसेस, उसकी जो हम डिमांड करेंगे तो वो इंटरम एप्लीकेशन में आएंगे। देन सच एप्लीकेशन एंड द पिटीशन गो फॉर द ट्रायल। ओके, नाउ जब हम बात करते क्लाइंट इंटरव्यू में, तो क्लाइंट इंटरव्यू में हमें क्या क्या होना जरूरी है जो हमारी प्लीडिंग्स के रिगार्डिंग काम में आएगा। फर्स्ट थिंग, द मैरिज डिटेल्स, मैरिज डिटेल्स, when such marriage is instituted, when which place has been organized and उसका registration हुआ है या नहीं हुआ है, where the parties is religion belongs, residence, jurisdiction, क्योंकि residence के अकॉर्डिंग या उनकी जहां भी उनकी मैरिज जो परफॉर्म हुई है उसके अकॉर्डिंग हम jurisdiction को क्या करेंगे फिल करेंगे। they have a children or not, they have a employed or not employed। तो ये क्यों जरूरी है, जब हम कस्टडी की बात करेंगे या मेंटेनेंस की बात करेंगे तो हमें चिल्ड्रन और इनकम का होना जरूरी है। अब बात होती है कि अगर कोई वॉयलेंस क्रिएट किया गया है, कोई कंप्लेंट फाइल की गई थी आइदर ऑफ द पार्टीज, तो उसके लिए वो जरूरी है, वो एविडेंस में काम आती है, उसको जब हम कोर्ट में एग्जिबिट कराते हैं तब वो काम में आती है। कोई प्रीवियस लिटिगेशन है पेंडिंग है, सपोज करिए कि वाइफ ने कोई मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई पिटीशन ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं सेक्शन 144 BNSS, या फिर अंडर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और अदर कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है, तो अगर वो प्रीवियस लिटिगेशन है तो वो भी हमें अपनी प्लीडिंग में क्या करना होगा फिल करना होगा, उसके बारे में लिखना होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेनली जब हम कोई भी अपने फैक्ट्स इंप्लीट करते हैं अपनी प्लीडिंग्स में, तो उसके सपोर्टिव में क्या होना जरूरी है, एविडेंस होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्री अगर एविडेंस हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये प्राइमरी एविडेंस कहलाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो रिकॉर्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हो गए, मैरिज सर्टिफिकेट्स हो गया, चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गया, देयर इनकम सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स, एंड बोला जाए तो अगर बच्चे हैं स्कूल में हैं तो उनकी अगर कोई स्कूल फीस फिल की जाती है, सारी चीज, तो उनकी जो भी बिल वगैरह हैं वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस बिल जो होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नाउ
अब हम जो मेनली कुछ ग्राउंड्स हैं उस पे अगर हम बात करें कि भाई ये सारे जो ग्राउंड्स हैं वो सारे पर्सनल लॉज पर एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द क्रुअल्टी, क्रुअल्टी ये सारे एक्ट जो है पर्सनल लॉ उन पे एप्लीकेबल होता है, तो बिल्कुल होता है। आप एक कंपैरेटिव ग्राउंड स्टडी जो है आप अपने पीपीटी में देख सकते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट पर भी एप्लीकेबल होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट पर भी होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, क्रिश्चियन मैरिज पर भी और पारसी पर भी। डेजर्टेशन जब त्याग कर दिया जाता है तो वो भी इस पे क्या है, एप्लीकेबल है, खाली मुस्लिम को छोड़ के, क्योंकि उनकी बहुत सारी अलग अलग टाइप की मैरिजेस होती हैं तो उस पर वो लिमिटेड स्कोप रखता है। अडल्ट्री, अडल्ट्री भी सारी चीज पर एप्लीकेबल है, अडल्ट्री का ग्राउंड्स बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ये लिमिटेड ही कंडीशन पर एप्लीकेबल होता है। मेंटल डिसऑर्डर सारी चीज सारे पर्सनल लॉ पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट मुस्लिम लॉ ऑन अ लिमिटेड कंडीशन। कन्वर्जन, तो ये भी अगर आप एक रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं या कन्वर्टेड हो जाते हैं तो भी ये चीज उस पर लागू होती है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये सारे पर्सनल लॉ पर एप्लीकेबल होते हैं। फिर बात आती है म्यूचुअल कंसेंट पर, कि म्यूचुअल कंसेंट पर हो सकती है मैं डाइवोर्स, तो बिल्कुल हो सकता है, मुस्लिम में भी हो सकता है लेकिन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पर। ओके, अब बात करते हैं, अगर हमने ये ग्राउंड्स निकाल लिए, अपने क्लाइंट काउंसलिंग करके हमने उनसे देखे कि भाई इनके साथ क्रुअल्टी की गई है, डेजर्टेशन किया गया, डिजर्शन किया गया, अडल्ट्री की गई है, तो अब हमें क्रुअल्टी का भी टाइप देखना है कि क्रुअल्टी किस काइंड ऑफ हो गई। अगर कोई फिजिकल क्रुअल्टी नहीं है तो देन वी हाउ कैन वी प्रूव सच फैक्ट ऑन द कोर्ट। तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई क्रुअल्टी किस टाइप की है। फिजिकल है तो फिजिकल के रिगार्डिंग अगर कोई टॉर्चर किया गया है, कोई इंजरी कॉज हुई तो उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग हम जो मेडिकल होंगे वो हम उसमें लगाएंगे। मेंटल अगर कोई क्रुअल्टी की गई है तो वो भी इसमें कवर होती है। इमोशनल अगर क्रुअल्टी है, इकोनॉमिक क्रुअल्टी है, अगर कोई पार्टनर है वो उससे बोलता है कि तुम कुछ कमाते नहीं हो या कुछ नहीं करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो वो भी इसमें कवर होता है। डेजर्शन कि अगर आपने जो कंटिन्यूस पीरियड के बाद है क्या उसको छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन इसके लिए एविडेंस होना प्रॉपर जरूरी है। अडल्ट्री, अब अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम बट इट इज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स का अगर ये ग्राउंड है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना जरूरी है। इफ अगर सम पर्सन हैज हैबिचुअली कॉन्टेक्ट टू एनी अदर वन और हैबिचुअली कॉन्टेक्ट एंड उसको लेके जा रहे हैं कहीं, तो वो अडल्ट्री में नहीं, लेकिन हमें उसके लिए फिजिकल जो रिलेशनशिप होता है वो प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एविडेंस होना जरूरी है। ठीक है, अदर ग्राउंड की अगर बात करें कन्वर्जन की, तो अगर उसने कोई रिलीजन चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। मेंटल डिसऑर्डर है, किसी पर्सन का अनसाउंड पर्सन है तो अनसाउंड पर्सन के रिगार्डिंग कि भाई वो सारी बात समझने के लिए है या नहीं है, या कुछ कुछ बातें ही समझ पाता है या जेन्युइन आंसर नहीं दे पाता है, देन वी गो फॉर अ मेंटल डिसऑर्डर। रिनाउंसिएशन कि भाई जब वो अपना छोड़ देता है, जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि वो छोड़ के कहीं तीर्थ के लिए चले जाते हैं और जो अपना घर त्याग कर देते हैं, उस टाइप की अगर कोई व्यक्ति प्रिजम्पशन जो आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से जिसके बारे में कोई सुना नहीं गया है तो वो उसके लिए प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, तो इट कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिकली अप्रोच पर अगर हम बात करें, म्यूचुअल कंसेंट प्रोसेस जो है डाइवोर्स के रिगार्डिंग, उसके लिए कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, क्या विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में म्यूचुअल कंसेंट प्रोसेस जो होती है डाइवोर्स की वो क्या कंप्लीट हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। अगर दोनों पार्टी एग्री है कि भाई इस चीज पर हम एग्री कर रहे हैं और हमें दोनों को साथ नहीं रहना है, या जो मैरिड रिलेशन है उसको हम आगे नहीं ले जाना चाहते, तो हम क्या करते हैं, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। या तो अगर आप इसमें ये जरूरी नहीं है डाइवोर्स जो है म्यूचुअल कंसेंट ग्राउंड पर कि इसमें दोनों साइड से ही एडवोकेट हों। अगर म्यूचुअल कंसेंट पर पार्टी एग्री कर रहे हैं तो सिंगल एडवोकेट से ही दोनों पार्टी का म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेटलमेंट एग्रीमेंट कराएंगे। सेटलमेंट एग्रीमेंट स्टाम्प पर भी हो सकता है और विदाउट स्टाम्प भी हो सकता है, कि नॉर्मल पेपर पर भी हो सकता है, उन पार्टीज के साइन होंगे। अब सेटलमेंट एग्रीमेंट जो होता है उसमें क्या होती है, तो जो टर्म्स होती हैं जिस पर पार्टी एग्री कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एलिमनी के रिगार्डिंग कि भाई एलिमनी कोई जो वाइफ है वो लेगी या नहीं लेगी, या तो सारा एक बार में लेंगी या पार्ट में लेंगी, या
वो वॉलंटरी सरेंडर भी कर सकती है। चाइल्ड कस्टडी किसके पास रहेगी, हस्बैंड के पास या वाइफ के पास। प्रॉपर्टी का डिवीजन किस टाइप से होगा, ठीक है, क्या उसको जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी उसमें मिलेगा या उसकी सेल्फ एक्वायर जो प्रॉपर्टी उसमें उसका हिस्सा मिलेगा या नहीं, ये सारी चीज किस पर आ जाती है, सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब कोर्ट होती है तो वो ये बोलती है कि भाई पहले आप कुछ लोग अपने जो टर्म्स होती हैं वो डिसाइड कर लीजिए। डायरेक्टली अगर अप्रोच करेंगे म्यूचुअल कंसेंट पर और बाद में आप जो बात थी और उस पर बोलने लगे सर हम म्यूचुअली कंसेंट नहीं है, अब ये चीज पर एग्री नहीं है, तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए वो किस चीज के लिए बोलते हैं कि भाई आप अपने बीच में कोई एग्रीमेंट है उसको करके लाइए और देन कोर्ट में प्रेजेंट करिए। देन फर्स्ट जो हियरिंग होती है जब एग्रीमेंट के बाद तो वो होती है फर्स्ट मोशन पिटीशन, या उसको हम बोल सकते हैं इन हिंदी प्रारंभिक कथन, प्राइमरी स्टेटमेंट। when the both of the parties come to in a court, the husband and wife their statement recorded in the court, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोशन पिटीशन। तो जॉइंट पिटीशन फाइल्ड बिफोर द फैमिली कोर्ट स्टेटिंग दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 year एंड अनेबल टू लिव टुगेदर। तो आपको बताना है 1 साल मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है कि भाई हम साथ में नहीं रह रहे और हमारे आगे कोई भी ऐसी फ्यूचर नहीं है कि हम साथ में आ सकते हैं, वो सारी चीज। अब कोर्ट क्या करता है, उस एविडेंस को या उस जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके आपके लिए 6 मंथ के बाद की कोई एक डेट देता है। 6 मंथ का जो टाइम होता है वो कंसिलिएशन पीरियड होता है। इस दौरान उनके बीच में मीडिएशन भी कराया जाता है। कोर्ट की कभी ये मनसा या इंटेंशन नहीं होती कि पार्टीज क्या कर दें, अपने जो मैरिड लाइफ है उसको खत्म कर। तो कभी नहीं, तो कोर्ट कम से कम 3 टाइम्स क्या करते हैं, मीडिएशन कराते हैं अलग अलग कोर्ट्स में। फीमेल जजेस के यहाँ मीडिएटर होते हैं, उनके यहाँ, या कोई भी सोशल वर्कर होते हैं उनके सामने। तब वो क्या होती है, उसके बाद आगे बढ़ती है प्रोसीडिंग। अगर वहां पे जो मीडिएशन है फेल हो जाता है देन सच पिटिशन गो फॉर द लास्टली एंड सेकंड मोशन और फॉर अ डिग्री। लेकिन उसके बीच में जो कूलिंग पीरियड होता है 6 मंथ का कंसिलिएशन पीरियड होता है, इसको ये फॉलो करना ही होता है। अब बात ये आती है कि कई बार आपने जजमेंट देखे होंगे ये सारी चीजें कि कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है। तो कूलिंग पीरियड वेव ऑफ किया जा सकता है बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले फर्स्ट मोशन जब पिटीशन आप कंप्लीट कर लेते हैं एंड सारे जो मीडिएशन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं 2 टाइम 3 टाइम्स वो जब कंप्लीट कर ली जाती हैं देन गो फॉर द, किस लिए, हम एक अर्जेंट हेयरिंग एप्लीकेशन लगाते हैं। अर्जेंट हेयरिंग एप्लीकेशन वी फाइल एंड मेंशन द जजमेंट। जजमेंट कौन सा है, जजमेंट है हरदीप सिंह, सॉरी अमरदीप सिंह, अमरदीप सिंह केस है जो कूलिंग पीरियड वेव ऑफ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसको हम कोर्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई पार्टी में कोई भी ऐसी संभावना, देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी टू लिव टुगेदर आफ्टर इन दिस कंसिलिएशन पीरियड और आफ्टर द सच पीरियड इज कंप्लीटली 6 मंथ के बाद भी उनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही हैं। तो देन अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाइड होता है तब वो कूलिंग पीरियड वेव ऑफ करता है। ऐसा हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, जो पार्टीज की कंडीशन होती है उसको देखते हुए ही कोर्ट अलाउ करती है। अदरवाइज उस 6 मंथ का जो कंसिलिएशन पीरियड है वो आपको फॉलो करना होगा। अब मान लीजिए या तो आपका कूलिंग पीरियड वेव ऑफ हो गया या मान लीजिए आपका 6 मंथ कंप्लीट हो गया। अब होती है सेकंड मोशन हियरिंग, इसको हम लास्ट मोशन हियरिंग भी बोलते हैं। वो जो स्टेटमेंट हमारे पहले किए गए थे उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पे सेकंड मोशन जो हियरिंग होगी वहां पे उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। वो सारी चीज करवा के और पार्टीज के वहां पे साइन करवा के अगर उसको वो रेडी है, जो फर्स्ट हियरिंग में बात हो रही थी कि हम म्यूचुअल कंसेंट पर सारी चीजें हैं, हम अपने जो मेंटेनेंस है कस्टडी है उसको हम सरेंडर कर रहे हैं और उन्हीं चीजों पर वो रेडी हैं, या मेंटेनेंस उनने लमसम जो भी अमाउंट है वो रिसीव कर लिया है, देन गो फॉर अ सेकंड मोशन और कोर्ट एग्री करता है तो देन कोर्ट उसको जजमेंट करेगा और डिग्री में उसको फॉलो करेगा। ये है म्यूचुअल कंसेंट की, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यूनिवर्सल पिटीशन फॉर्मेट पर बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होना जरूरी है। फर्स्टली जब आप पिटीशन देखते होंगे या आपने कभी ड्राफ्ट की होगी तो सबसे पहले कोर्ट हेडिंग जरूरी है। कोर्ट हेडिंग क्यों जरूरी है कि भाई हम कौन सी कोर्ट में ये फाइल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बीच में आना चाहिए या पहले आपने पढ़ा होगा कि समटाइम्स द टू ऑफ द कोर्ट्स हैव अ जुरिडिक्शन टू डिसाइड द डाइवोर्स पिटीशन। फर्स्ट इज द फैमिली कोर्ट, सेकंड वन है डिस्ट्रिक्ट जज। अब इनके बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है,
क्यों हम फैमिली कोर्ट में जाएं और क्यों हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएं? फैमिली कोर्ट या फैमिली कोर्ट एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वो वहीं पर एप्लीकेबल होता है जो अर्बन एरिया में कवर होता है, या म्यूनिसिपैलिटी एरिया जहां पे आता है वहां पे क्या होता है, वहां पे फैमिली कोर्ट एप्लीकेबल होती है। अगर कोई भी पर्सन वन हु हैज filed a petition is belong to any village, any tehsil place, then such person has a filed petition to the district judge. Okay, it's a clear. Okay, then we go for the cause title. Cause title, the party's name, their resident, their age, occupation has been come for the cause title. And versus then go for the opposite party, respondent parties as a नाम, उनके नाम वगैरह हम उस पर मेंशन करेंगे। जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन को हम फॉलो करेंगे कि भाई इस कोर्ट की जुरिडिक्शन में क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई जो पिटिशनर है वो वहीं पे परमानेंटली लिव कर रहे हैं, या वहां की उनकी जो शादी थी वही उसी कोर्ट की जुरिडिक्शन में परफॉर्म की गई थी। ये सारे फैक्ट जो क्या होते हैं हमें मेंशन करने होते हैं। फिर आते हैं हम मैरिज फैक्ट्स पर। फैक्ट्स पर हम बात करते हैं कि किस वजह से हम कब उनकी शादी हुई, कब उनके बीच में तकरार होने लगी, या किस चीज के कारण डिस्प्यूट अराइज हुए। तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ डेट वाइज हमें क्या करना होता है, अपनी प्लीडिंग में मेंशन करना होता है। अभी एक हम आपको एक ड्राफ्ट भी बताएंगे। लास्टली जब हम अपनी सारी जो फैक्ट्स हैं उनको बता के फिर हम प्रेयर क्लॉज पर आते हैं। तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में भाई हम क्या रिलीफ मांग रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, उस शादी को समाप्त करना है, उस मैरिज को डिसोल्यूट करना है। तो हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रेयर है उसमें डिमांड करेंगे उस चीज की। मेंटेनेंस एलुमनी जो हमें चाहिए या उसके लिए हम डिमांड करेंगे। चाइल्ड कस्टडी, ठीक है, चाइल्ड कस्टडी उसके सपोर्ट के लिए, उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी हम उसमें मेंशन करेंगे। लिटिगेशन कॉस्ट, जो भी आपके लिटिगेट करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट आई है उसमें, या जो आपके एडवोकेट के लिए जो फीस वगैरह जो आपने पे करी है उसके लिए आप लिटिगेशन कॉस्ट के लिए प्रेयर क्लॉज में आप उसको मेंशन करते हैं। और अदर रिलीफ जो आपको चाहिए, सम पर्सन हैज अ चाइल्ड, अगर वो चाइल्ड है और उसका एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उस बच्चे का भी क्या होता है, राइट होता है। देन आप उस रिलीफ को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब हमें क्या होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट जो एनेक्स करते हैं हम डाइवोर्स पिटीशन में, तो वो कौन से होना जरूरी है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट हम उसमें एनेक्स करेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो हम जो शादी कार्ड होता है उसको भी हम उसमें एनेक्स कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो सरपंच पार्षद की जो कोई स्लिप होती है उस चीज को भी हम उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत पहले शादी हुई उस समय मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना था तो हम क्या करें, तो जो भी सरपंच है, पार्षद हैं, या जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उनके द्वारा जो जारी किया गया है सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ पे लगाएं। मेडिकल रिकॉर्ड्स के भाई अगर कोई क्रुअल्टी हुई है फिजिकल मेंटल, तो उसके रिगार्डिंग हमें मेडिकल रिकॉर्ड, हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हमारा ट्रीटमेंट चला, उसके प्रिस्क्रिप्शन में वो सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस किस वजह से ये सारी चीज हुई हैं, और हम जो भी हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स करेंगे उसको फॉलो करने के लिए हमें मेडिकल रिकॉर्ड लगाना जरूरी है। इफ सम ऑफ द पार्टीज हैज filed a police complaint, any परिवाद और कंप्लेंट अंडर द BNSS, देन वो हमें कॉपीज उसमें मेंशन करना है। कॉपीज नहीं है तो हम उसको मेंशन करेंगे कि भाई ऐसे ऐसी चीज की गई है, FIR फाइल करी गई है, NCR फाइल करी गई है, वो उसको हम बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस परमिसिबल है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अगर की चैट्स की स्क्रीनशॉट्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, ईमेल्स है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, एंड कुछ भी एलिगेशन है जैसे एडल्ट्री हुई है तो उसके रिकॉर्डिंग आपके पास कोई वीडियोग्राफी है, वो सारी चीज है, या क्रुअल्टी जब हुई थी तो आपने उसको वीडियो रिकॉर्ड किया था, या CCTV फुटेज में कुछ ऐसी चीज आई थी तो वो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं विद द सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। इनकम डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप्स हो गए, या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर प्रॉपर्टी उनकी कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे है तो उनके रिगार्डिंग आप उसका खसरा या जो भी चीज जो जो टाइटल के बारे में बताता है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है, उनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है। और इसके साथ ध्यान रखें तो एक सेक्शन 25 की एफिडेविट फाइल करना होता है बोथ ऑफ द पार्टीज, वेदर वाइफ और हस्बैंड, उनको एक सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग एक एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है, उनकी खुद की और
जिससे वो सामने वाली पार्टी से वो क्लेम करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज की इनकम डिटेल्स के बारे में किसमें होता है, सेक्शन 24 जो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू अगर कोई डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी गई है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इंटरिम एप्लीकेशन, तो इंटरिम एप्लीकेशन पर अभी अपन ने थोड़ी बहुत बात करी है। तो इंटरिम एप्लीकेशन में कौन सी, तो इंटरिम मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं कि जब तक पेंडेंसी ऑफ द सूट, पार्टी की जो कोई भी मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, उनकी इतनी नहीं है कि वो एक्सपेंसेस खर्च कर सके, तो वो इंटरिम एप्लीकेशन लगाते हैं कि जब तक वो चीजें, तो डेट ऑफ द एप्लीकेशन से उनको एक्सपेंसेस दिलाए जाए, मेंटेनेंस दिलाए जाए। लिटिगेशन की जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी कोर्ट फीस उनको पे करनी होती है, एडवोकेट फीस पे करनी होती है, उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। चाइल्ड कस्टडी किसके पास होनी चाहिए, क्या नहीं है, किसी से आप किसी जो आपका बच्चा था उसको जबरदस्ती ले लिया गया, उसकी भाई कस्टडी दिलाई जाए, अभी वो छोटा है, ये सारी चीज के लिए कर सकते हैं। इंजंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ द पार्टीज जो क्या करना चाह रही है कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है कि भाई मुझे इसको देना ना पड़े या एलुमिनी के रूप में ना देना पड़े, तो वो कहीं डिस्पोज करने वाला है, तो उसके लिए हम इंजंक्शन के लिए कोर्ट में क्या कर सकते हैं कि इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या चाइल्ड की कस्टडी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इंटरिम एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। ओके, अब हम बात आती है कि भाई अब पिटीशन हमारी फाइल हो चुकी, पिटीशन हमारी फाइल हो गई, अब कौन कौन सी चीज कोर्ट करेगा। सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा, उस पिटीशन को चेक करेगा, उसको क्या करेगा, उसको पिटीशन को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, उसको स्क्रूटनी की जाएगी कोर्ट द्वारा, या उनके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या कोर्ट ऑफिसर है उनके द्वारा स्क्रूटनी किया जाएगा। देन वी विल गो फॉर द नोटिस। अब पार्टी जो अपोजिट पार्टी, रिस्पोंडेंट पार्टी, उसके लिए नोटिस सर्व होगा। नोटिस के साथ हमेशा जब भी सर्व किया जाता है, जिसको समन बोला जाता है, इफ यू बिलोंग टू द एमपी मध्य प्रदेश स्टेट कोर्ट्स, तो वहां पे वर्ड बोला जाता है तलवान, है ना, जो तलवाना होता है उसको नोटिस ही बोला जाता है। तो तलवाना में क्या करते हैं हम, वो सारी चीजें फिल करते हैं कि भाई जो अपोजिट पार्टी है उसको क्या क्या करना है, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके साथ हम कौन सी डॉक्यूमेंट अनेक्ट कर रहे हैं। तो जो समन सर्व किया जाता है उसके साथ क्या होती है, आपके जो प्लेंट है, एप्लीकेशन है पिटीशन की, उसकी एक कॉपी भी अपोजिट पार्टी को पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया नोटिस। देन अपोजिट पार्टी जब अपेयर होती है तो उसके साथ क्या किया जाता है, रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, अब कोर्ट को लग रहा है कि भाई पार्टीज में ऐसी संभावना है कि मतलब इनके बीच में जो भी जो विवाद है, जो भी डिस्प्यूट है, वो इतना हाई लेवल का नहीं है, उसको मतलब मीडिएशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो मीडिएशन तो अब जनरली क्या है, कंपलसरी है, कोर्ट मीडिएशन करवाएगी ही करवाएगी। तो कोर्ट फिर उन पार्टीज को किसके लिए, मीडिएशन के लिए पहुंचा देती है। अगर मीडिएशन में फेल हो जाते हैं, मतलब फेल कि भाई उनमें बीच में, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज या कोई भी साथ रहने वाली बात नहीं बन रही है, देन गो फॉर अ ट्रायल पर्पस। अब हम ट्रायल के लिए आएंगे, ट्रायल के लिए आएंगे तो एविडेंस, तो एविडेंस ये नहीं कि आपने मेडिकल एविडेंसेस हैं या जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिगार्डिंग आपने डायरेक्टली फाइल कर दिया। एविडेंस मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा, पार्टीज का चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। अदर पार्टीज का भी क्या होता है, उनका भी चीफ होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, उसके साथ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट भी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट भी है तो उसको भी एग्जामिन किया जाता है, उसको एग्जिबिट किया जाता है। ठीक है, उसको एग्जीबिशन बोला जाता है, एग्जिबिट किया जाता है। तो वो एग्जिबिट भी, जब कभी आप देखेंगे कोई भी एविडेंस देखेंगे या जजमेंट देखेंगे तो उसमें एग्जिबिट EX P1 EX, अगर रिस्पोंडेंट साइड से है तो EX R1 EX R2, इसके काइंड ऑफ क्या करते हैं, उसको एक नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, एविडेंस कंप्लीट होने के बाद बात आती है आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट्स में जो सारी चीजें जो एविडेंस में निकल के आई हैं, उस पर जो भी पार्टी से पिटिशनर साइड से, वो सबसे पहले अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट करेंगे। देन क्या करेंगे, जो रिस्पोंडेंट साइड से, वो अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट करेंगे। अब बात ये आती है कि जो हम बात करते हैं ना कि जो रूलिंग्स होती हैं या जजमेंट्स होते हैं, वो हमें कब फाइल करना चाहिए। समटाइम्स बहुत से बोलते हैं कि भाई हम व्हेन वी फाइल अ पिटीशन अलोंग विद, हमें उसके साथ में ही क्या कर देना है, जजमेंट उसके साथ ही लगा देना। तो ऐसा नहीं होता है। जब आर्ग्यूमेंट की स्टेज आती है
उसी समय पे हमें क्या करना है, अगर हम रिटर्न आर्गुमेंट दे रहे हैं तो उसी के सपोर्ट में हमें क्या कर देना है, उसकी रूलिंग्स दे दी हुई है। और अगर ये नहीं है तो अगर हम ओरल आर्गुमेंट कर रहे हैं तो हमें उसके सपोर्ट में जो भी रूलिंग्स होती हैं वो हमें कोर्ट में डायरेक्टली प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ऐसी अपोजिट पार्टी करती है तो हम प्लीडिंग के साथ नहीं देते हैं, जब आर्गुमेंट की स्टेज हो जाती है उस समय हम उसको देते हैं। जब आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट उसके लिए एक डेट फिक्स करता है, देन कोर्ट उस पर जजमेंट करता है, और जजमेंट के बाद डिक्री क्या करते हैं, डिक्री पास की जाती है। तो डिक्री ऑलवेज फॉलो जजमेंट। ठीक है, डन। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम इफेक्टिव ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि जितने जो भी पर्सनल लॉज हैं, उन लॉ के रिगार्डिंग जो भी लीगल प्रोविजन है वो हमें एक्यूरेट लीगल प्रोविजन को फॉलो करना। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ऐसी कोई पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं जिसमें सारी चीज इंक्लूड हो रही है, क्रुअल्टी हो रही है, अडल्ट्री भी इंक्लूड हो रही है, कोई भी अनसाउंडनेस भी उसमें आ रही है, या समवन पार्टी एज जिसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चले, सारी चीज, अब इसमें सारी चीज, अब आप कंफ्यूज है कि हम किस ग्राउंड पर करें, देन यू हैव ओनली मेंशन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो उस सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में जितने भी ग्राउंड्स आ रहे होंगे वो सारी चीज में आपकी पिटीशन क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। अगर आप एबीसी कर दें और उसको वो फॉलो नहीं कर रहे और आपका जो भी फैक्ट वो डी पर जा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। फिर आप बीच में एप्लीकेशन लगाएंगे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए और ये सारी चीज के लिए, ऑर्डर 6 रूल 17 के लिए, तो वो क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आपके लिए बहुत सारी परेशानी भी होगी। ठीक है, तो उससे बेटर ये है कि आप एक काम करें कि जो मैन एग्जैक्ट प्रोविजन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग टाइटल बेस करके आप क्या कर दें, अपनी डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दें, ये आपको इजिली रहेगा। कभी कभी क्या होता है, सेकंड उस पर आते हैं हम, इनकरेक्ट ज्यूरिडिक्शन की। अगर ज्यूरिडिक्शन अगर आपने सही नहीं किया है तो भी क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन सबसे पहले जरूरी है। अगर ज्यूरिडिक्शन सही नहीं है तो क्या हो सकता है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है। इफ यू रीड आउट अबाउट द ऑर्डर 7 रूल 11, दे हैव अ 6 ग्राउंड कॉज ऑफ एक्शन इनकरेक्ट। अगर आपने ज्यूरिडिक्शन में फाइल की, प्रॉपर आपने कोर्ट फीस पे नहीं करी है, लिमिटेशन पीरियड फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसका प्लेन क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसी आपकी जो पिटीशन है उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है अगर वो सही ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रही। ठीक है, इफ आपकी जो प्लीडिंग्स है उसको क्या करना चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर आपने क्लाइंट से मीटिंग करी है, अरेंजमेंट किया है, उनके डॉक्यूमेंट को आपने लिया है, तो अगर आपने उनको प्रॉपर स्टडी किया होगा तभी आप उसकी प्लीडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए। अगर आप क्रुअल्टी की बात हो रही है तो क्रुअल्टी कब की गई है, किस डेट पर हुई है, उसके बाद क्या हुआ है, कौन से हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, वो सारी कॉज ऑफ एक्शन वो जो होना चाहिए सीरीज में होना चाहिए, उसकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, वो सारी चीज। डॉक्यूमेंट कि भाई आपने फैक्ट कुछ भी लिख दिए लेकिन अगर उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या आपके एविडेंस जब आपके एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं उस समय भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप फिल नहीं करते हैं, तो भी आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और फिर आपको दिक्कत, मतलब केस फाइल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया जाना, उसकी फुलफिलमेंट होना और लास्टली जजमेंट होना, ये इंपॉर्टेंट है, और आप अपनी पार्टी को रिलीफ दिला पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, या तो कोर्ट के सामने होना चाहिए, या एवरी पेज जो बोलते हैं कि भाई हर पेज पर क्या होना चाहिए, पार्टीज की वेरिफिकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर हम बात करें कि भाई इफेक्टिव ड्राफ्टिंग कैसे हो, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें क्या होना चाहिए जिसको हमें, तो सबसे पहले क्या है, हमें कलेक्ट करनी कंप्लीट फैक्ट्स। कंप्लीट फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए क्या है कि भाई सबसे पहले हम जो भी प्रोविजन हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके फैक्ट भी हमें जनरेट करना, उसको प्रॉपर राइट डाउन करने चलना है डेट वाइज। उसी डेट वाइज के अकॉर्डिंग आप अपने पैराग्राफ जो भी होंगे आप अपनी ड्राफ्टिंग में उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, सेकंड अपनी बात होगी कि भाई जो भी फैक्ट्स हम क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए। जो फैक्ट है वो आपकी जो ग्राउंड जिन पर आपने अपनी डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी है उसको वो फॉलो करना चाहिए। जो एलिगेशन है और जो आप की जो एविडेंस आपने लगाई कि इसके अकॉर्डिंग जो भी क्रुअल्टी की गई तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया गया, मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी सबमिट करी गई है, तो वो उसको सपोर्ट की जानी चाहिए। और एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रिक और जो टेस्टिमोनियल है वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं।
कुछ ऐसी एलिगेशन है जो हमें जबरदस्ती या अननेसेसरी नहीं लगाना है, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ्स होती हैं उनको जरूर आप उसमें लिखें, जैसे भाई इंटरम मेंटेनेंस की हमने बात करी, चाइल्ड कस्टडी के बारे में बात करी, प्रॉपर्टी का डिवीजन है या उसको डिस्पोज किया जा रहा है, इनके बारे में हमें प्रॉपर क्या करना है, अपनी प्लीडिंग्स में मेंशन करना है, तभी इफेक्टिव अपनी ड्राफ्टिंग हो पाएगी। अब I have one draft which I have made for you. Kindly wait. Okay. So it's on your screen. We have talked about the jurisdiction of the court. तो अगर jurisdiction of the court है तो हमारी कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, बिफोर द प्रिंसिपल जज और डिस्ट्रिक्ट जज, तो हमारी वो प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। पार्टीज चाहे वो हस्बैंड जो पिटिशनर हो वो हो सकता है, वाइफ हो सकता है, उसके नाम यहाँ पे होने चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, उनकी ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उनकी एज होना चाहिए, हस्बैंड का नाम जो भी है, उनका एड्रेस हो, उनके फादर का नाम हो, ऑक्यूपेशन हो, रेसिडेंट हो, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी। अब ये जो डाइवोर्स पिटीशन है ये हमने किस ग्राउंड पे बनाई है, क्रूअल्टी के ग्राउंड पर। डाइवोर्स पिटीशन अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो हमें अगर स्पेसिफिक प्रोविजन याद है या आपको ध्यान है कि हमें इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी डाइवोर्स पिटीशन को फॉलो कराना है, तो हम वो प्रॉपर पिटीशन का जो सेक्शन है वो हम क्या करेंगे, अपने हेडिंग में उसको हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट पैरा में अगर हम बात आती है तो पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट आर हिंदूज बाय रिलीजन एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अब इनकी जो मैरिज है वो कब कराई गई उसके बारे में स्पेसिफिकली हमें मेंशन करना है। हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज के थ्रू अगर ये हुई है तो प्रॉपर उसको मेंशन करना है। सेकंड पैरा पर आते हैं, दैट द टाइम ऑफ मैरिज पिटिशन पेरेंट्स प्रोवाइड डाउरी गिफ्ट्स ऑर्नामेंट्स। अगर डाउरी के संबंध में अगर कोई कंप्लेंट की गई है तब तो वो उसकी क्राइम कैटेगरी में, लेकिन अगर ये एज अ गिफ्ट दी जा रही है डाउरी वगैरह वो सारी चीजें, तो वो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई डिमांड करी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें दी गई थी, तो वो आप अपनी प्लीडिंग में मेंशन कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, जो सारी चीजें दी जाती है, नेसेसरी एसेंशियल जो भी चीजें होती है वो दिए गए अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर जो अपोजिट पार्टी है वो भाई सेटिस्फाइड नहीं हुई, उसको भाई और डिमांड करने लगे डाउरी, क्योंकि ये क्रुअल्टी में, क्योंकि हम मेंटल जो क्रुअल्टी को अगर फॉलो कराएंगे तो वो कहाँ से आना चाहिए। तो यही सारी चीज के जो हमने चीजें दी उससे जो अपोजिट पार्टी थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, वो डिमांड कर रही थी बार बार और भी चीजों के लिए, ठीक है। तो फैमिली मेंबर जो रिस्पोंडेंट के थे वो भाई डाउरी मांग रहे थे भाई अलग से कि भाई 5 लाख रुपए की वो बुलेट मोटरसाइकिल या कार या गोल्ड चेन या जो भी चीज है वो आप अपने पैरा में उसको मेंशन कर सकते हैं। और जब हमने उसको मना किया कि हम इतनी डाउरी नहीं दे सकते, तो जो अपोजिट पार्टी रिस्पोंडेंट जो है उन्हें सब्जेक्ट बीइंग सब्जेक्टेड टू फिजिकल क्रुअल्टी, वर्बल एब्यूज, ह्यूमिलिएशन और जो भी मेंटल क्रुअल्टी, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, पैरावाइज अपनी इस चीज में मेंशन कर सकते हैं, अपनी ड्राफ्टिंग में उसको मेंशन कर सकते हैं। अब जब जो पिटिशनर थी वो क्योंकि एक ह्यूमन है और उसके साथ कोई क्रुअल्टी करी गई, उसी टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी, तो वो जो क्रुअल्टी का असर उसके बच्चे पर भी हुआ। उसके बच्चे जब हुआ होने को था तो उसको भाई अगर ट्राई किया गया कि भाई वो उसको टर्मिनेट करा दे प्रेगनेंसी के लिए, तो ये सारे फैक्ट भी हमें क्या करना है उसमें मेंशन करना है, ठीक है। अब इस क्रुअल्टी की वजह से उस जो पिटिशनर है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, उसको भाई जो ऑप्सिंग लैंग्वेज या सारी चीज में क्रुअल्टी करी गई सारी चीज, तो वो इमोशनल ट्रॉमा में गई, उसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ा, ठीक है। कई बार क्रुअल्टी इस कदर की हो गई थी कि उनको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी, उसने जो भी 100 डायल या 112 जो था उस नंबर पे उसको कॉल किया,
लेकिन कई बार उसको फोर्सफुली लेके उसको मारा, उसका फोन तोड़ दिया गया। तो ये सारे जो फैक्ट्स होते हैं, जब आपने अपने क्लाइंट को काउंसिल किया होगा तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, इसमें मेंशन करनी है अपनी ड्राफ्टिंग में, तभी वो प्रॉपर तरीके की ड्राफ्टिंग होगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी, तो दैट ऑन 21 March 2026 पिटिशनर लॉन्च द कंप्लेंट बिफोर द पुलिस स्टेशन, कि भाई पुलिस स्टेशन में आपने कोई कंप्लेंट फाइल करी, एफआईआर फाइल करी या एनसीआर फाइल करी, किस सेक्शन के अंदर करी गई थी, उसकी एक कॉपी आप लगाएंगे, वो सारे सेक्शन इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो संबंध होने चाहिए, कोविटेशन, जो भी सेक्सुअल रिलेशन हो, उसको अगर परफॉर्म नहीं किया जा रहा, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, एक पैरा मेंशन कर सकते हैं। फिर जब हम इस चीज के बाद भी हम उनके यहाँ पे रहने गए, या हम जब भी वहां पे रह रहे थे तो वो हमारे साथ वही क्रुअल्टी कर रहे थे, डाउरी की डिमांड करना, वो सारी चीज तो हम उसको मेंशन करेंगे। अब इसकी वजह से हमें जो भी मेंटल पेन हुआ, ये सारी चीजें हुई, हमें इंटीमेट किया गया, थ्रेट किया गया, जिससे हम मायके में जाके या जो भी उस वाइफ का जो भी घर है वहां पे रह रहे हैं, अलग से कोई रूम लेके रह रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसको मेंशन करनी। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इन चीजों से क्या साबित होता है कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, इनके साथ क्रुअल्टी करी गई, और इसका ग्राउंड बनता है अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो द रिस्पोंडेंट हैज ट्रीटेड द पिटिशनर विद सच फिजिकल एंड मेंटल क्रुअल्टी एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, मेकिंग इट, ये सारी चीज मेंशन की भाई इस क्रुअल्टी की वजह से अब ये पॉसिबल नहीं है कि पिटिशन किसके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ रह सके। तो इम्पॉसिबल फॉर द पिटिशनर टू कंटिन्यू लिविंग विद हिम, द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द रिस्पोंडेंट अनलॉफुल कंडक्ट। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है। ठीक है। ग्राउंड्स आप स्पेसिफिकली एक पैरा बना सकते हैं ग्राउंड्स के रिगार्डिंग, आप उस ग्राउंड्स को लिख सकते हैं कि भाई अनलॉफुल डिमांड करी गई डाउरी की, फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस किया गया। सेकंड, अच्छा, जो क्वेश्चंस है वो उसके लिए अभी अपना एक सेशन होगा, उस पे अभी अपन बात करेंगे, तो उसमें अपन क्वेश्चन आंसर सारे चीज लेंगे। ठीक है। अभी अपन इस ड्राफ्टिंग पे बात कर ले थोड़ा, है ना। तो ग्राउंड्स पर हम बात करें तो ग्राउंड्स के लिए हम अलग से एक पैरा मेंशन करके उसमें सारी चीजें लिख सकते हैं कि भाई डाउरी की डिमांड करी गई, फिजिकल और मेंटली डोमेस्टिक वायलेंस हमारे साथ किया गया, उसके फॉलो में हमने एक कंप्लेंट फाइल करी गई थी, रिपीटेड एब्यूजमेंट हो रहा था। ठीक है। प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट करने के लिए बोला गया, उसकी विल के अगेंस्ट जाते हुए। ठीक है। तो ये सारी चीज जो स्त्री धन था जो ह्यूमन को मिला था शादी के दौरान, वो सारी चीज वो भी उनसे क्या कर लिया गया, डिटेन करके रख लिया। तो ये सारे ग्राउंड्स आपको मेंशन करना है। उसके बाद क्या है कि भाई वो अपने पैटर्नल फैमिली के साथ रह रही है। ठीक है। और उसकी जो बच्चे की जो हेल्थ है उसके लिए, और उसके लिए क्या है, अब वो चूंकि फाइनेंशियल वो क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर हम आते हैं लास्टली प्रेयर ग्राउंड्स पर। तो प्रेयर के ग्राउंड्स पे हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, जिस पर हमारी प्लीडिंग बेस्ड है उसके ही रिगार्डिंग जो भी हम रिलीफ चाह रहे हैं वो हम प्रेयर में मेंशन करेंगे। तो इसमें अगर हमने क्रुअल्टी के रिगार्डिंग हमने बनाई, तो पास अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, देयरबाय डिसॉल्विंग द मैरिज solemnized between the petitioner and the respondent, award cost of the present proceeding in the favor of petitioner, grant such other and further relief with the honorable court may deems fit and proper in the interest of justice। अब ये तो हो गई हमारी मेन ड्राफ्टिंग। इसके बाद अगर हम चीज चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि इंटरिम हमें मेंटेनेंस चाहिए या बच्चे की कस्टडी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक इसके साथ ही एनेक्ट करके एक इंटरिम एप्लीकेशन भी फाइल करनी होगी। इसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे। वेरिफिकेशन में यही होता है कि जो पिटीशन है उसके एसेस पैरासेस के तक के जो भी जो फैक्ट्स हैं वो मेरे नॉलेज और बिलीफ में क्या है, सही है, ट्रू है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी ड्राफ्टिंग। ठीक है। अब कुछ और ग्राउंड्स पर अगर हम बात करें तो, कि भाई और कौन से ग्राउंड हो सकते हैं, तो ये हमने अभी क्रुअल्टी के रिगार्डिंग हमने बात करी, डाउरी हरासमेंट इस पर बात करी, डोमेस्टिक वायलेंस पर बात करी, डिजर्शन पर भी हम क्या कर सकते हैं,
जो सारे आपके क्वेश्चन हैज बीन अराइज वो हम अभी डाउट सेशन जो होगा अभी हम उसमें सारी चीजों बाय वन जो आपके चैट्स में है उसको हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ग्राउंड्स पर बात कर लें कि भाई वो जो हम एक जो पैरा है जिस पर हमने असॉल्ट या क्रुअल्टी के बारे में बात करी उसकी जगह हम और कौन से जो भी ग्राउंड्स उसको हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये जैसे डिजर्शन के रिगार्डिंग है तो उसमें अगर हम ये सेक्शन 31B वाला ग्राउंड है वो उसमें मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हुए फैक्ट्स हमको उसमें डालना होगा। अडल्ट्री के बारे में अगर हम चीज है तो भाई उसको मेंशन कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट हैज वॉलंटरी एंगेज इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन आफ्टर द मैरिज, ठीक है। तो ये सारी चीज कन्वर्जन कि भाई उसने जो हिंदू मैरिज से उसकी शादी हुई थी लेकिन अब वो किसी दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट हो चुका है, उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग उसको फैक्ट में अभी हम मेंशन कर सकते हैं। कम्युनिकेबल वेनिबल डिसीज है ऐसी कि भाई उसके साथ रहने से ऐसी डिसीज हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, या उसने जो वर्ल्ड है उसको त्याग कर दिया, रिनाउंसिएशन कर दिया है, या उसके 7 साल या उससे ज्यादा से उसके बारे में कोई चीज सुनी ही नहीं गई है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन होना चाहिए कोविडेशन वाली चीज उसको वो रिफ्यूज कर रहा है, या इन सारी चीज के बाद भी फैमिली जो प्री गैदरिंग उसके बाद भी सबकी समझाए सजेशन के बाद भी वो क्या है साथ रहने के लिए वो नहीं। सबसे ज्यादा जो हस्बैंड यूज करते हैं वो कौन सा है, फॉल्स क्रिमिनल लिटिगेशन। जो वाइफ है उसने अगर कोई लिटिगेशन फाइल कर दी फॉल्सली कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के लिए फाइल कर दिया है, उसने मैरिज मेंटेनेंस के लिए अननेसेसरी वो कर दिया है, डाउरी के लिए फाइल कर दिया अलग से, तो हस्बैंड क्या है कि भाई ऐसी चीजें नहीं है लेकिन फिर भी इसने ऐसी करके क्या कर दी फॉल्स क्रिमिनल लिटिगेशन, तो इस अकेले ग्राउंड्स पर भी क्या कर सकता है हस्बैंड, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है, ठीक है। थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन के लिए, फाइनेंशियल नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये सारे ग्राउंड्स आप डाल सकते हैं। स्त्री धन जो है कि भाई स्त्री धन जो चीज है जो वाइफ को मिलती है वो अगर रिटेन करके रख दी गई है, ठीक है। प्रेगनेंसी जब थी वाइफ की तब क्या कंडक्ट हो रहा था, तो ये सारी चीज कॉज ऑफ एक्शन में जो चीजें हैं वो उसमें आएगी। फिर इसके बाद भाई ज्यूरिडिक्शन जो हमने बात करी थी कि भाई ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड होगा, तो भाई मैरिज कहाँ सोलमनाइज की गई थी, कहाँ पे कंडक्ट की गई थी, जो पार्टीज थी वो लास्टली दोनों साथ में कब साथ जहां पे रहे तो उस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, या जो पिटिशनर है वो कहाँ पे अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं किस कोर्ट की जुरिडिक्शन में तो उसमें भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जैसे बात करते हैं कि भाई उसकी सिविल डेथ या उसकी प्रिजम्पशन पर बात करते हैं तो तब हमें वो लिमिटेशन पीरियड जो होता है उसको मेंशन करना होता है। इफ हस्बैंड हैज और वाइफ फाइल एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो उसमें जो भी टाइम लिमिट है कि इस टाइम के बाद से हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहा है वो भी टाइम लिमिट आप क्या कर सकते हैं मेंशन कर सकते हैं। प्रेयर ग्राउंड्स सब जानते ही हैं वो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने ग्राउंड्स पर ही डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेयर वो करते हैं। हाँ मेन चीज के दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉल्यूजन मतलब पार्टीज ने क्या किया कि भाई अपन जो शादी हुई थी वो गलत तरीके से अपन बाहर उसको क्या कर लेते हैं फ्रॉडलेंट की इंटेंशन के साथ सेटिंग करके कि भाई हम कोर्ट से पास करवा लेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा वो सारी चीज, तो ऐसा नहीं करना है। गुड इंटेंशन के साथ ही आपकी क्या होनी चाहिए पिटीशन फाइल होनी चाहिए, और एडवोकेट जो होते हैं जो ड्राफ्ट करते हैं उनको इन चीजों का मेनली बहुत सही तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम्म, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके जो भी डाउट्स आ रहे थे उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले चैट सेशन पर हम बात करते हैं जो सबके स्टार्टिंग से जो भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सर जब पिटिशनर चार्जेस लगा रही है असॉल्ट के तो क्या रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में भी केस चलेगा या सिर्फ फैमिली कोर्ट में चल सकता है? ये डिपेंड करता है पार्टीज पर कि अगर पार्टी जो भी है वाइफ है अगर उसने लगाया हुआ है कोई भी कंप्लेंट फाइल करी गई है अंडर द BNSS या उस चीज के लिए, तो अगर उसने केस लगाया है
तो आप उसके लिए मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी केस नहीं चल रहा तो आपने केवल डाइवोर्स ही पिटीशन फाइल करी तो फिर डाइवोर्स पिटीशन। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई आपने क्रिमिनल केस फाइल किया गया है तो वो आपको हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल कहाँ पे होता है? इस डाइवोर्स पिटीशन में फाइल होता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपने अगर कोई एफआईआर फाइल करी होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया होगा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी गई होगी, तो कोर्ट क्या करता है अननेसेसरी उसमें डिले ना करके जो उसकी जो एग्जामिनेशन है जो उस कोर्ट में हुआ है, जो क्रिमिनल कोर्ट में जो भी ट्रायल चल रहा था वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट्स द असेस्ट एंड लायबिलिटी इन द डाइवोर्स केस। असेस्ट एंड लायबिलिटी पर अगर हम बात करें तो हमने बात करी कि अगर हम हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी डाइवोर्स पिटीशन अगर फाइल कर रहे हैं देन वी हैव टू फाइल अ एफिडेविट अंडर सेक्शन 24 and such affidavit we have to describe our own assessed and liability and respondent assessed and liability वो फाइल करना कंपलसरी ही है। Harshvardhan, if the petitioner is ready to file a case for assault, they can do the same under domestic violence act. हाँ बिल्कुल, जो आप यहाँ पे जो चीज फॉलो कर रहे हैं वो वहां पे भी कर सकते हैं, उसके रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है वहां भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक केस आपका असॉल्ट का तो आप ग्राउंड बना रहे हैं ना। डाइवोर्स पिटीशन में आप क्या कर रहे हो, असॉल्ट के रिगार्डिंग या क्रुअल्टी के रिकॉर्डिंग आप अपना ग्राउंड्स बना रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो असॉल्ट या ग्राउंड्स या जो क्रुअल्टी है वो तो कोई क्रिमिनल कोर्ट में अगर फाइल होगी तो वहां पे प्रूव होगी, क्योंकि उसको आपको क्या दिलानी है, सजा दिलवानी है, उसको इम्प्रिजनमेंट कराना है, तो उसके लिए आप वहां पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई सजा नहीं मिलने वाली, यहाँ पे आप अपनी जो भी डिसॉल्व कराने के लिए, जो आप अपनी मैरिज डिसॉल्व कराने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है। सर क्या ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट एक ही केस में नहीं होते? ये एक ही केस में होते, सिंगल केस में ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसको देखो, पहले हम जो आपका क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग हम कर दे, फिर आपको उसके रिगार्डिंग आप पूछें तो अलग से आप अपने सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो जो एग्रीमेंट फाइल कर रहे हैं हम किसके लिए, म्यूचुअल कंसेंट, जो भी म्यूचुअल कंसेंट के लिए जो हम डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर एग्रीमेंट फाइल करना है। ओरल नहीं होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न फॉर्म में हो, क्योंकि ओरल में तो फिर आप स्टेटमेंट देंगे कोर्ट में, है ना। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ओरल और रिटर्न को हटा के आप रिटर्न एग्रीमेंट है वो कोर्ट में फाइल करें। अब क्या ये एक ही केस में हेल्पफुल है? लेकिन अगर आप मान लो कि आपका डाइवोर्स यहाँ पे क्या हो गया, आपने म्यूचुअल कंसेंट के लिए फाइल कर दिया, आप सोच रहे हैं कि कोई सब्सिक्वेंट जो भी और भी या जो और भी पिटीशन या जो भी क्रिमिनल केस है जो वाइफ द्वारा लगाया गया, क्या हम वहां पे उसका यूज कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी आप सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाएंगे और उस केस में या उस क्रिमिनल कोर्ट में उसको फाइल कर सकते हैं। वेयर कैन आई रिसीव द ड्राफ्टिंग मॉड्यूल? ये जो आपकी विधि ज्ञाता जो टीम है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। टाइम पीरियड क्या होता है केस में, इतने साल में फाइनल होना चाहिए, समन कितने बार भेजते हैं एंड वारंट कब भेजते हैं, नॉट क्लियर। चले, हाँ टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड अगर हम बात करें केस का तो उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ठीक है। लेकिन मेनली अगर हम बात कर लें, जैसे हमने म्यूचुअल कंसेंट की बात करी तो फर्स्ट हियरिंग जो होती है उसमें आपकी प्राइमरी एविडेंस करा लिए जाते हैं, प्राइमरी एविडेंस मतलब स्टेटमेंट करा लिए जाते हैं। उसके बाद आपको 6 मंथ का कंसिलिएशन पीरियड दिया जाता है। ठीक है। उसके बीच में आपकी जो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको फॉलो किया जाता है। अब बात आती है समन के बारे में बात कर रहे हैं, तो समन की जो काउंटिंग है या जो हम एक्सपायर्टी प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं वो कब से काउंट होती है, तो वो जो समन है वो उस व्यक्ति पर क्या होना जरूरी है, सर्व होना जरूरी है। अगर वो सर्व नहीं हो रहा है, जो हम सेक्शन 5 की सॉरी ऑर्डर 5 सीपीसी की अगर बात करें तो हमें फिर दूसरी यूज में करना है, सब्स्टिट्यूट जो सर्विस ऑफ समन है उसको यूज करना है, न्यूज़पेपर में सर्व करवाना है, इस टाइप की चीज कर सकते। वारंट यहाँ पे यूज नहीं होगा, मतलब जो हम डाइवोर्स पिटीशन की हम बात कर रहे हैं तो वारंट का यहाँ भी यूज नहीं है। वारंट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, मैट्रिमोनियल जो भी प्रोसीडिंग चल रहा है, जैसे आपकी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चल रहा है, आपका मेंटेनेंस डिसाइड हो गया और आप पे नहीं कर रहे 1 साल तक, 144 के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई मेंटेनेंस
एप्लीकेशन फाइल करी तब हम वारंट इशू करा सकते हैं। जनरली वारंट कहाँ नहीं होंगे, डाइवोर्स पिटीशन में वारंट कभी नहीं भेजे जाते। ठीक है, चलिए। Can previous any criminal case be a relevant document annexed in a future divorce petition? बिल्कुल, हमने बात ही करी, हमने उसमें आपको एनेक्सर जब हम बता रहे थे कि इनके बीच में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स जो चली हस्बैंड वाइफ के बीच में है, क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, वो सारी चीज क्या है, रिलेवेंट है, प्राइमरी एविडेंस के रूप में यूज की जा सकती है। तो हमें जो फ्यूचर डाइवोर्स पिटीशन जो भी फाइल कर रहे हैं उसके साथ हमें लगा सकते हैं। इवन अगर सच प्रोसीडिंग हैज बीन क्या है, पेंडिंग भी है, तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स पिटीशन के साथ फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्या सर अगर वाइफ या हस्बैंड मेंटेनेंस ले सकता है अगर वाइफ अगर हस्बैंड से ज्यादा इनकम हो तो? देखो, ले सकता है मतलब ऐसी कुछ जुडिशियल रूलिंग प्रेसिडेंट्स आए हैं, लेकिन क्या है, एक रूलिंग ये भी है कि अगर हस्बैंड भिखारी भी है तब भी उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर वाइफ क्या है, प्रॉपर है, मतलब वो अपनी कोई जॉब कर रही है या उसके पास फाइनेंशियल असिस्ट है, जिस या वो पढ़ाई वढ़ाई करे, प्रॉपर तरीके से नौकरी कर सकती है, तब उसका क्या है, जो मेंटेनेंस है वो माफ किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई आप अपनी वाइफ से मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल हो। ठीक है, कुछ ही केस कंडीशन है जहां पे बोला गया है, कुछ ही 0.1% या बोल सकते हैं इन्हीं पर बोला गया है कि जहां पे मान लो जिस समय उसका हस्बैंड है वो किसी मेडिकली अनफिट है या कोई हॉस्पिटलाइज है और वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, तब और उसकी वाइफ वेल मेंटेन्ड है, जॉब में है, सारी चीज, तब वो मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वाइफ मेंटेनेंस या कस्टडी डिमांड करती है तो क्या ड्राफ्ट में प्रेयर की पोजीशन में आएगा? हाँ, ड्राफ्ट में हमें वो उसमें मेंशन करना है, अगर मेंटेनेंस हम डिमांड कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। और वो जो आप इंटरम एप्लीकेशन की हमने जो बात करी, चाहे वो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हो, कस्टडी, तो उसकी भी एक अलग से प्रेयर आपको बनानी पड़ती है, उसमें आप उसको जरूर मेंशन करेंगे। आप मेन पिटीशन में तो लिख ही सकते, और जो सब्सिक्वेंट जो भी आप इंटरम पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसके साथ एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, चाहे मेंटेनेंस की हो, कस्टडी को, या प्रॉपर्टी का जो भी डिस्पोजिशन उसको रोकने के लिए आप कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रेयर में वो मेंशन कर सकते हैं। Sir, what standard of clause we can add in the prayer so that if any hidden property assessed there, it can also be added and included simultaneously? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पिटीशन के साथ फाइल कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो आप उन प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हो, आप अपने एफिडेविट, जैसे हमने बात करी कि सेक्शन 24 की जो एफिडेविट है वो आपको फाइल करना होता है। कोई भी अगर मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग चल रही है किसी फैमिली कोर्ट में अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी असेस्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप केवल नॉलेज के आधार पे भी मेंशन उसको कर सकते हैं। बाद में आप सामने वाली पार्टी को क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉलो करवाने के लिए या उसको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए। सर, इफ अ वाइफ अर्न्स देन अ हस्बैंड इक्वली फाइट फॉर मेंटेनेंस, हस्बैंड इज नॉट अर्निंग मनी। हाँ, तो अगर ये इस पे बात कर चुके कि भाई अगर हस्बैंड से ज्यादा वाइफ कमा रही है तो हस्बैंड के जो मेंटेनेंस है वो उसके लिए मना कर सकती है कोर्ट। लेकिन अगर वाइफ के साथ उसका बच्चा भी रह रहा है, सारी चीज रह रही है, तो फिर उसकी लाइबिलिटी हस्बैंड पर बनती है। क्या सर अगर वाइफ से हस्बैंड मेंटेनेंस ले सकता है अगर वाइफ अगर हस्बैंड? ठीक है, चलिए, ठीक है। व्हाट इज द स्त्री धन? हाँ, इस पे बात हो गई, जो ऑर्नामेंट वाइफ के होते हैं जो ड्यूरिंग जो मैरिज होती है जब उसको दिए जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं स्त्री धन में। एनी अदर क्वेश्चंस? There are no more questions. Thank you very Okay, much, so sir, for such an thank you insightful and everyone. engaging session. Your Thank you. explanation of the legal framework, practical aspect, and drafting techniques of a divorce petition has provided valuable learning. We sincerely appreciate your guidance, expertise, and valuable time. Now, to conclude the session professionally,
I would like to call Mr. Achyut Parth Mishra, Chief Technical Officer of Vidyata, to deliver the vote of thanks. Achyut, the virtual stage is yours. A very good evening to everyone. As we conclude today's session, I would like to express my sincere gratitude to Advocate Rahul Agarwal sir for delivering such an insightful and practical session on divorce petition and drafting exercise. Sir, your valuable guidance, practical experiences, and detailed explanation of the drafting process have greatly benefited all the participants and even us. We are truly thankful for your time and contribution. I would also like to thank all the participants for their active participation and enthusiasm throughout the session. Lastly, I extend my appreciation to the entire team of Vidyata for their continuous efforts in organizing and successfully conducting this course. Thank you everyone for being a part of today's session. Have a great evening ahead. Thank you. Guys, don't leave the meeting. First of all, thank you, Mr. Chief Technical Officer, for your kind words. Before we conclude, I would like to remind all participants that the recording of today's session will be uploaded on the official Vidyata YouTube channel, and participants are requested to stay connected with us through our official communication channels for update regarding upcoming sessions, internships, opportunities, and legal resources. We look forward to meeting you in the next session. Thank you. Thank you, everyone.